In this module, you will learn about the coordinates of a point in space. We have seen how to locate a point in a two-dimensional plane with respect to its coordinate axis. In three-dimensional space, we identify the point with respect to the distances from these reference planes. Let's see what reference planes are to locate a point in space. We have two planes perpendicular to each other. Intersection of the two planes is a straight line. Let's take another plane perpendicular to both existing planes. With intersection of this plane with the two existing planes, we get three lines mutually perpendicular to each other. These lines are called axes and are named x, y, and z. And the point of their concurrent is called the origin, which is denoted by a letter O. By convention, we consider the xy plane by the horizontal plane. Distances are measured from the origin on these axes. One side is considered as positive and other side as negative. For example, the distance measured from the origin along the x-axis along the direction shown is positive. On the other side is considered as negative. We indicate this with a symbol x dash. Similarly, conventions are followed in y and z axis. The plane formed by x and y axis is called xy plane. Similarly, the plane formed by y and z axis is yz plane, and the plane formed by x and z axis is known as xz plane. The xy plane, yz plane, and zx plane divides the space into 8 octants. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth. Here, XOYZ is the octant. This octant is enclosed by XYZ axis. Similarly, other octants are named by the axis enclosed them. Any point in the space is represented by the help of distances that it measures with respect to the planes. These distances are called the coordinates of the point. Suppose we have a point P in the space. The coordinate of this point are x, y, z. Each coordinate individually indicates the shortest distance of the point from the corresponding plane. For example, the coordinate x determine the shortest distance of the point P from yz plane. Similarly, coordinate y and z determines the shortest distance of the point P from xz plane and xy plane, respectively. The coordinate of the origin are 0, 0, 0. यस बेटा, अभी जैसे कि आपने वीडियो में देखा तो उससे आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, तो मेरे पास एक ऐसा मॉडल है जो कि 3D को रिप्रेजेंट करता है और ऑक्टेंट्स को उसमें इजीली आपको शो हो जाएगा। तो ये है वो 3D मॉडल। इसमें जैसे मैंने आपको बताया उस वाले वीडियो में कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स divide the space into 8 part and each part is known as octant, right? तो अब इसमें क्या है देखो, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कौन कौन से इसमें देखते हैं। ये प्लेन है, ठीक है, और ये प्लेन है जो यहां से लेके यहां तक जा रहा है। ये प्लेन यहां से लेके ये पूरा यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट है, और ये एक प्लेन ये है, ठीक है। अलग अलग कलर के हैं, देखो ये मतलब ये कोई कलर नहीं है, ये ब्लू है, ये आपके पास येलो कलर है, राइट।
तो अब देखो ये दीज आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। अब आप कंसिडर कैसे करते हैं, जो आपकी साइड जो ये है, जो येलो वाला जो प्लेन है, इसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसके बैक साइड में एक्स डैश, जो आपकी साइड है पॉजिटिव एक्स एंड एक्स डैश नेगेटिव एक्स, आपके राइट साइड को पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, इसका जेड का ऊपर को पॉजिटिव जेड और ये नेगेटिव जेड, राइट। अब दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय x axis and y axis, so that's why this plane is known as xy plane. Again this plane is formed by y axis and z axis, so that's why it is yz plane. And this is xz plane because this is formed by x and z axis, right. So these three mutually perpendicular divide the space into 8 part and each part is known as octant. अब octant कौन कौन से हैं, देखो this octant is known as first, जो आपके राइट साइड में पहला जो है, दिस इज फर्स्ट ऑक्टेंट, दिस इज सेकंड ऑक्टेंट, दिस वन इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। अब आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा, उस वीडियो में भी ऐसे ही बताया गया था। तो ये 8 ऑक्टेंट्स हो गए। अब इसका मैं साइन बता देता हूं कि कोई भी पॉइंट जो है इस स्पेस में फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो उसके साइन क्या होंगे, मतलब x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। तो देखो अगर कोई भी पॉइंट इस पे है तो इस ऑक्टेंट में है तो ये x भी इसमें क्या है, पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। तो दैट्स वाई जो कोई भी पॉइंट फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा दैट विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब ये है हमारे पास सेकेंड ऑक्टेंट। सेकेंड ऑक्टेंट में देखो आप, अगर कोई भी पॉइंट सेकेंड ऑक्टेंट में है तो इसमें क्या होगा, x क्या है हमारे पास, x तो नेगेटिव है क्योंकि बैक साइड पे है, ठीक है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव और z ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास ये थर्ड ऑक्टेंट है। थर्ड ऑक्टेंट में x नेगेटिव, देखो बैक साइड पे है, लेफ्ट साइड में y जो है लेफ्ट साइड में है इसका तो नेगेटिव और z जो है ऊपर है ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आपके पास फोर्थ ऑक्टेंट है, x जो है इसमें क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। आपको पता चल गया होगा कि देखो जो z जो है चारों ऑक्टेंट में पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की साइड है, राइट। अब ये फिफ्थ ऑक्टेंट देखो, इसमें x क्या है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव इस साइड को है और z जो है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, z नेगेटिव है, राइट। अब ऐसे ही ये वाला ऑक्टेंट सिक्स्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ में क्या है, x क्या है, पीछे की तरफ है नेगेटिव, y राइट साइड को है पॉजिटिव, z जो है वो बिलो है तो नेगेटिव। और सेवंथ ऑक्टेंट में x जो है नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और ये एट्थ ऑक्टेंट है ये वाला, एट्थ ऑक्टेंट में क्या है, x क्या है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव क्योंकि आपकी साइड को है पॉजिटिव, y जो है आपके लेफ्ट साइड में है नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव और z जो है बिलो है तो दैट इज अगेन नेगेटिव। तो ये तो आपको मुझे लग रहा है कि अब आपको साइन इसके पता चल गए होंगे। तो दैट वाज ऑक्टेंट। ये आप देख सकते हैं अच्छे से, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, राइट। तो ये तो था ऑक्टेंट के साइन। अब आपकी जैसे आप कभी भी साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपके माइंड में ये जो मॉडल है ये आपके माइंड में जो आप विजुलाइज हो जाना चाहिए जब भी आप जो है डिसाइड करेंगे कि साइन क्या होंगे किसी भी ऑक्टेंट में, राइट। अब करते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। अब देखो हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं स्पेस में। देखो जैसे ये है, अब मैं कंसिडर कर रहा हूं, मैं ये जो बना रहा हूं, देखो जो हम इसमें बोर्ड पे जो बना सकते हैं ना, हम जो है फर्स्ट ऑक्टेंट का बना रहा हूं मैं पहले, कि देखो फर्स्ट ऑक्टेंट कैसे बनाता हूं मैं इसलिए बोर्ड पे डायरेक्ट डिटेल से बना रहा हूं ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बना दिया, ये मिला दिया,
ये मैं फर्स्ट ऑक्टेंट को बना रहा हूं, तो ये मैंने दिया है x, ये y, ये z, ठीक है। तो ओरिजिन है ये, सपोज ये पॉइंट P है, x, y, z, तो दैट मीन्स कि क्या हुआ, ये पॉइंट P x, y, z, देखो ये कहा, देखो मैं ऑक्टेंट इसमें बताता हूं आपको कि मैंने ये फर्स्ट ऑक्टेंट इसको बनाया है, देखो इस शेप को बनाया यहां पर, ये देखो x है, नहीं सॉरी y है, ये x है और ये अबव साइड z है। P कोई पॉइंट इधर होगा, राइट, ये यहां पर होगा कोई पॉइंट P, ठीक है, जो इस प्लेन से भी डिस्टेंस पे है, इस प्लेन से भी है, इस प्लेन से भी है, राइट। तो कैसे, देखो अब सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास x है, पॉइंट इस प्लेन से x डिस्टेंस पे है, तो इसको मैं x ले लेता हूं और इसको y ले लिया, ये z ले लिया, ठीक है, x y z मींस जो मैं इसमें दिखाऊंगा, तो दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, राइट। अब देखो सपोज मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, ये एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड कैसे आया ये कोऑर्डिनेट, कि एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये पीछे वाला प्लेन है, उससे कितना डिस्टेंस पे है, ये इतना डिस्टेंस पे है, ये पीछे वाला प्लेन जो है, ये देखो ये वाला प्लेन, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है, तो ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस एक्स था ना, तो इतना डिस्टेंस भी एक्स होगा, सपोज ये पॉइंट पी यहां पर है, तो ये डिस्टेंस एक्स है, राइट, ये वाला एक्स है, जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, और ये भी एक्स है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स हो गया, तो यानी कि कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन। ऐसे ही जो आपके पास ये डिस्टेंस है, ये इतना y होगा, ठीक है, तो यानी कि y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्जेक्ट प्लेन, जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्जेक्ट प्लेन, ठीक है, एक्जेक्ट प्लेन से कितना, तो ये कितना डिस्टेंस था, इसको हमने कितना माना था, y माना था, तो y हो गया, और ये भी आपके पास z है, तो ये भी z होगा, ठीक है, तो z कोऑर्डिनेट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से कितना डिस्टेंस पे है, ये जेड डिस्टेंस पे है, ये उस वाले पीछे वाले प्लेन से एक्स डिस्टेंस पे, इस वाले प्लेन से जेड डिस्टेंस पे, तो दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये P है, सपोज ये A है, दिस इज B, C और D, E, F, और उसको हमने P ले लिया, ठीक है। अब मैं सभी पॉइंट्स के इसमें कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं कि कैसे हम सभी पॉइंट्स के इसमें कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लेट अस सी, यस, अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कि मुझे देखना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन कौन सा, पीछे वाले प्लेन से कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, और y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्जेक्ट प्लेन, तो एक्जेक्ट प्लेन पे तो लाई कर ही रहा है, इस वाले प्लेन पे, तो 0, और z कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे भी ये लाई कर रहा है, तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, मैं इसमें करके बताता हूं आपको, जो ये पॉइंट है वो यहां पर कहां पर है, ए पर है, यहां पर है ये पॉइंट ए, तो यानी कि देखो ये एक्स जेड प्लेन पे भी लाई कर रहा है और एक्स वाई प्लेन पे भी लाई कर रहा है, दैट्स वाई इट्स y एंड z कोऑर्डिनेट इज 0, और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x coordinate is the distance of that point from yz plane, तो yz plane से कितना डिस्टेंस पे था ये, x डिस्टेंस पे, दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेट इज x, 0,0। ऐसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,y,0, ठीक है, 0,y,0 कैसे, कि x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन, तो yz प्लेन पे तो लाई कर रहा है, B पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, तो ये yz प्लेन पे भी और xz प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो इसका x और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और ये डिस्टेंस कितना है y, तो दैट्स व्हाई 0,y,0,
ऐसे ही ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 जेड, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, और अब देखते हैं डी का। डी क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट मैंने अभी क्या बताया कि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है पीछे वाला, उस वाले प्लेन से कितना डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, और ये कितना था, एक्स है, तो इसलिए एक्स होगा। फिर ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सजेड प्लेन। एक्सजेड प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है जिसमें एक्स और जेड है ना, तो एक्सजेड प्लेन इस डिस्टेंस, इस प्लेन से कितना डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट, ये इतना पॉइंट है, और ये कितना है, ये वाई के इक्वल है, तो एक्स कॉमा वाई हो गया। और डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, जेड कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे तो ये लाई कर रहा है, तो 0, मतलब ये डी पॉइंट कहां पर होगा, उसमें दिखा देता हूं मैं, डी पॉइंट ये है। तो देखो ये जो है इस वाले प्लेन से तो इतना डिस्टेंस पे, इस वाले प्लेन से इतना डिस्टेंस पे, और एक्स वाई प्लेन पे तो ये लाई कर रहा है, तो 0 0। ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब देख तो ई, ई के कोऑर्डिनेट देखो, अब ई के कितना हो जाएगा, फिर देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन पे तो लाई कर रहा है 0। ठीक है, ये पीछे वाले प्लेन पे तो लाई कर रहा है ना ई पॉइंट, तो 0। फिर वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सजेड प्लेन। एक्सजेड प्लेन ये रहा, एक्सजेड प्लेन से ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, इतना, और ये डिस्टेंस कितना था, ये था, तो वाई। और जेड कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन ये इस प्लेन से कितना डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस कितना था, इतना है, तो विच इज जेड, तो 0 वाई जेड। ऐसे ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो एफ का, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन से कितना है ये, वाईजेड प्लेन ये पीछे वाला प्लेन है, इससे कितना डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट, इतना डिस्टेंस पे, और ये कितना है, ये एक्स है, तो एक्स, राइट। और फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सजेड प्लेन। तो एक्सजेड प्लेन पे तो ये लाई कर रहा है 0, और जेड कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन ये था, इस प्लेन से कितना डिस्टेंस पे है, ये इतना, और ये कितना है, जितना ये है जेड। तो ऐसे ही हमने सभी पॉइंट्स के इसमें कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, तो ये तो सारे जो है हमारे पास, मैंने जो भी कोऑर्डिनेट निकाले हैं ये फर्स्ट ऑक्टेंट के निकाले हैं। ऐसे ही आपके जो है अदर ऑक्टेंट्स के आपको पता चल जाएंगे। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखो इस पे पेस्ट देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, P2, 4, फाइंड द, हाँ अब देखो P जो पॉइंट है 2, 4, 5 है। अब जैसे P जो है वो 2, 4, 5 है, तो इसका मतलब X जो है वो 2 है, Y 4 है, Z 5 है। तो हमने, इसने क्या पूछा हमसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ F। F कहां पर है इसमें, फिगर में देखो 12.3 फिगर है, F पॉइंट है हमारे पास इसमें, F पॉइंट यही है, यही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है पॉइंट P, that is 2, 4, 5. तो therefore coordinate of point F, ये था हमारे पास x, 0, z, यानी कि 2, 0, 5। F के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे ही आप देखो, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स लाई। एग्जाम्पल 2 देखो आप, example 2, find the coordinate, find the octant in which point these following these points lie. तो -3, 1, 2 and other point is -3, 1, -2। ठीक है, अब ये तो हमें किससे, साइन से ही पता चल जाएगा। साइन से ही पता चल जाएगा कि x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव होना चाहिए। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। तो आपको देखो, ये जो है मैंने अभी ऑक्टेंट आपको बताया था, तो
ऑक्टेंट के साइन अभी हमने पीछे बताए थे ना, तो यानी कि माइनस ने नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये है हमारे पास सेकेंड ऑक्टेंट, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये है सिक्स्थ ऑक्टेंट। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कैसे है ये सिक्स्थ ऑक्टेंट, और मैंने साइन आपको बताया था, देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये है सेकंड, फर्स्ट ये था सेकंड, मतलब एक्स नेगेटिव है, देखो ये है सेकंड, ठीक है, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, ठीक है, तो ये सेकंड का आ गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा वो सेकंड ऑक्टेंट में होगा। ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में देखो जो ये वाला पॉइंट है, एक्स जो है वो नेगेटिव है, बैक साइड पे है, वाई पॉजिटिव है, राइट साइड को है, और जेड जो है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये सिक्स्थ ऑक्टेंट में होगा। राइट, तो इस तरह से हम जो है ऑक्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने जो है डबल तरीके से आपको एक वीडियो के थ्रू भी, और एक मैंने आपको पूरा जो 3D का मॉडल था उसके थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप मुझे मैथ्स ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो अब इसमें बेटा इस पे बेस्ड जो आपने होमवर्क करना है, दैट इज एक्सरसाइज 12.1। तो नाउ होमवर्क बेस्ड ऑन दिस वीडियो, एक्सरसाइज 12.1। ओनली कितने क्वेश्चन है उसके अंदर, ओनली 4 क्वेश्चन है और 4 के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वो करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।